किसी को मुकम्मल बना। एंड आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इवन आज भी न्यूज़ में था कि कर्नाटका में फिर से हिजाब का स्कार्स है, वो भी एक स्टोरी बोलते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कार्स। आई टेल ओपनली टू पीपल कि हाँ है ना, जर्नलिज्म भी एक एक्टिविज्म है एक टाइम का। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, स्टोरीज ऑफ हर औरतों की स्टोरीज, एंड वो मैं बहुत अच्छे से सुना सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ, बिकॉज हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशम फातिमा। तो आज शीरू कैफ़े में था लेड बाय का इवेंट विमेंस डे पे, तो जहाँ पर मैं पैनलिस्ट थी। उसके बाद वहाँ बाहर एग्जीबिशन भी लगा हुआ था शीरू कैफ़े में, तो काकी का बुटीक भी वहाँ पर प्रेजेंट कर रहा था। एंड सो लेट्स गो एंड सी व्हाट हैपेंड इन द इवेंट। कैफे और खाना खाना नहीं था। Discussion, Voices of Womanhood, a diverse dialogue. We're hosting this event at Shiru Cafe in collaboration with Nedby Foundation as part of our 3-day celebration called Embrace, Women's Day and Pre-Ramzan event. I am your host, Maria, and I'm thrilled to be here with some incredible women whom I've had the pleasure of chatting with. Mariam Sheikh. Choosing the path of homeschooling, she has set out on a quest to cultivate her children's intellect and well-being. आज का प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मज़ेदार हो। आप सब आराम से बैठ जाइए और हम शुरू करते हैं। बाकी मैं सवाल इंग्लिश में। रेशम फातिमा. She stands as a beacon of resilience and determination, having triumphed over the challenges posed by a devastating acid attack. Her unwavering spirit and courage earned her the prestigious Bharat Award presented by former President Pranab Mukherjee, a testament to her exceptional journey of overcoming adversity. Should we do mic or is there if we can get one? You have to use my phone. Unwavering support and courage and earned her the prestigious Bharat Award presented by former President Pranab Mukherjee, a testament to her exceptional journey of overcoming adversity. In her impactful role in journalism, the introduction, can we have a round of applause for Mariam Sheikh and Resham Fatima? The next panelist we have is Ghazala Sona. Thank you so much for joining us today. I am really looking forward to experiencing the enlightenment to the questions. I'd like to ask all of you, what is that one question or statement that you find tiresome to hear repeatedly? And what do you believe should be the focus of conversation instead? So for instance, in my case, people often make the observation that I don't look like a Muslim. Recently, having moved from Shaheen Bagh to Noida, it seems everybody there already knows that I'm a Muslim. It's intriguing how individuals are often typecast and labeled for the sake of convenience, revealing much about how we are perceived. I make an effort to avoid framing discussions in terms of they and us, but is there a noticeable divide or something that troubles each of you? We can start with this. एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत टाइम से पूछा जाता है। जब भी मैं चेंज हो जाती हूँ, तो जामिया में तो नहीं पूछा गया है, JNU में या स्कूल फ्रेंड्स थे तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल का, तो जब मैं हिजाब करने लगी तो मुझसे सबने यही क्वेश्चन करा कि जब तुम्हारे साथ क्योंकि एसिड अटैक सर्वाइवर हो तुम हिजाब तुम इसलिए करती हो ना कि तुम्हारे स्कार्स हैं। तो इवन JNU में मुझसे पूछा गया कि स्कार्फ क्यों करते हो तुम, क्या मतलब हिजाब क्यों करना होता है, ये तुम्हारी चॉइस नहीं है ना, ये तुम्हारी मजबूरी थी ना। तो मैंने उस टाइम पे एक आंसर किया कि ये एक रास्ता था जो मैंने चुना। एंड हाँ, बेशक जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मैं 15-16 साल की थी, एंड तब मेरे हेयर काफ़ी लॉस हो गए थे एंड फिर बाल भी काटने पड़े थे। तब मैं ऐसे बस सर पे दुपट्टा रखने लगी। फिर मैं जामिया आई एंड वो एक जर्नी मैंने जी है, वो एक स्पिरिचुअलिटी की, जब मैंने हिजाब को चूज करा एंड आई चोज इट एज अ वुमेन। एंड आज भी एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, इवन आज भी न्यूज़ में था कि कर्नाटका में फिर से हिजाब कंट्रोवर्सी, राजस्थान में कंट्रोवर्सी।
तो मैं ये कहना चाहती हूँ सबसे पहले हिजाब को एज अ वुमेन्स चॉइस देखना चाहिए। आप इसको रिलीजन के पर्सपेक्टिव से हटा दीजिए। मैं अपने आप को ऐसे कवर करके अगर कंफर्टेबल फील कर रही हूँ तो ये मेरा एज अ वुमेन्स चॉइस है। ये मेरा, मैं एज अ औरत अगर मैं सर पे दुपट्टा रख के, पंजाब में जो लड़कियाँ होती हैं यूनिवर्सिटी जाती हैं या कॉलेज जाती हैं, उनका एक ड्रेस कोड है कि वो सर पे ऐसे दुपट्टा ऐसे रख के जाती हैं, नॉन मुस्लिम्स भी। तो वहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं हो रहा है कि आप, तो वो उनका चॉइस है, वो ऐसे सर पे दुपट्टा, अगर मैं सर पे दुपट्टा ऐसे बांध ले रही हूँ तो वो एज अ मुस्लिम ये आइडेंटिटी वो आपको कि आप क्योंकि आप दबाए हुए हैं, आप ऑप्रेस्ड हैं, आपको किसी ने कहा है इसलिए आप हिजाब करते हैं। तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन में से बहुत करा गया कि आप हिजाब क्यों पहनती हैं, क्यों आप हिजाब इसलिए पहनती गई हैं, उसमें अजम्पशंस भी लगाए गए। बट वहाँ पर जो आपने बोला ना कि फोकस कहीं और भी होना चाहिए, फोकस यहाँ पर होना ही नहीं चाहिए। फोकस होना चाहिए कि ये मेरी चॉइस है एज अ वुमेन, एंड ये हर पूरी दुनिया में हर औरत को एक चॉइस होनी चाहिए कि वो कैसे कपड़े पहनना चाहती है, वो उसकी चॉइस होती है। मैं सर पे ढक के अगर कंफर्टेबल हूँ, मैं इस तरह से कंफर्टेबल हूँ, तो ये मेरी चॉइस है। तो फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए रादर देन आप क्यों पहनती हैं, आप ऑप्रेस्ड हैं, आप अजम्पशंस अपने आप से लगा लें। सो आई बिलीव यहाँ पर फोकस होना चाहिए। वेरी वेल सर। अब यहाँ पे बात आ गई लोगों की, और रेशम मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आप जर्नलिस्ट हैं, आप कहानियाँ लोगों तक पहुँचाते हैं, तो आपके लाइफ में ऐसी कौन सी कहानी है जिसकी वजह से आप मोटिवेटेड फील करते हैं दूसरों की कहानियाँ और लोगों तक पहुँचाने? लाइफ में शायद मैं कहूँगी कि हाँ एक बहुत बड़ी कहानी है जो सब जानते हैं, बट लाइफ का पर्सपेक्टिव जो होता है ना वो एक चीज़ से नहीं बनता है। एक ही ऐसी रोड होती है, आपको लगता है कि अच्छा ये प्लान से मुझे ये अचीव करना है। इवन 2014 में जब मेरा ये इंसिडेंट हुआ तो उसके बाद भी हॉस्पिटल में थी मैं, तो मेरे मामू ने मुझसे एक बात कही, वो बहुत इंपॉर्टेंट था। शायद वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट्स होते हैं आपकी लाइफ के, बट शायद एक टर्निंग पॉइंट भी नहीं होता, एक मेजर होता है, फिर बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो मेरे मामू ने मुझसे कहा था कि देखो ये तुम्हारी ज़िंदगी में ये हो गया, तुम्हें अगर रोना है तो रो लो, क्योंकि रो के भी मगर एक, अगर तुम्हें रोना है तो बताओ, हम सब फैमिली भी हम सब साथ में मिलकर रोएंगे, बट कंडीशन सिर्फ एक है कि अगर हम सब रो के इस चीज़ को रिवर्स करते तो हम सब रोएंगे। बट अगर ये नहीं हो रहा है तो बताओ रोने से, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम अपने आप को सेक्यूट कर लो, एक कमरे में बंद कर लो अपने आप को, और तुम उस चीज़ की सज़ा पा रही हो जो तुमने करी भी नहीं, एंड फिर तुम खुद को पनिश करो। ये तुम लाइफ चूज़ कर सकती हो, या दूसरी लाइफ ये तुम चूज़ कर सकती हो कि इस दुनिया में अल्लाह पाक ने किसी को मुकम्मल बनाया ही नहीं है, किसी के फ्लॉज दिखते हैं, किसी के नहीं दिखते, और हर इंसान अपनी किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा है। तो उस परेशानी को तुम कैसे चेंज कर सकती हो ना, टर्निंग योर एडवर्सिटी इज वो वाली बात जो है, तो उस चीज़ को तुम कैसे, और दुनिया में जो इंसान आप जैसे हो वो आपको वैसे पसंद करे, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है। कोई मुकम्मल है ही नहीं, और अपनी चीज़ों को, आपके इवन जो स्कार्स हैं वो भी एक स्टोरी बोलते हैं। तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई स्कार्स। आई टेल ओपनली टू पीपल कि हाँ, जब कुछ आके मेट्रो में होता है कि आपकी क्या हो गया है ना, आप सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे वर्ड्स बोल के रादर देन सेइंग बेचारे। तो या वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, बट इनटू जर्नलिज्म तो ये स्ट्रेट बात नहीं था। ऑनेस्टली आई टेल यू, पहले मेरा प्लान था कि घर की बहुत अच्छी पढ़ने में, सबसे अच्छी पढ़ने में बच्चा, तो फिर सबसे पहले फैमिली को हो जाता है कि IAS बन जाओ, और एक कहीं ना कहीं वो मेरे लिए भी एक वो सिंपल और वाली जॉब चाह रही थी कि वो एक हो जाए, बिल्कुल ही सेटल हो जाए, इसलिए ये होगा। बट फिर मैं जामिया RCM में थी 2 साल, कोविड आ गया एंड ये सारी चीज़ें हो गई। देन वहाँ पर मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं नहीं बनी हूँ IAS बनने के लिए, मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं बैठना है ऑफिस में, मुझे नहीं पॉलिटिशियंस के अंदर बैठना है। मैं अपनी आवाज़, जो एक एक्टिविज्म होता है ना, जर्नलिज्म भी एक एक्टिविज्म है एक टाइम का। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ, स्टोरीज ऑफ हर, औरतों की स्टोरीज, एंड वो मैं बहुत अच्छे से सुना सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ, बिकॉज मैं खुद उस चीज़ की, वो कहा जाता है ना कि सर्वाइवर हूँ। तो वहाँ से मेरा ये इंटरेस्ट डेवलप हुआ। फिर मैं JNU भी गई, तो मैं मास्टर्स करने लगी, पॉलिटिक्स में कर रही हूँ मास्टर्स, और IR मेरा स्पेशलाइजेशन है। बट स्टिल ये सारी चीज़ें ना मुझे पूरी दुनिया की औरतों की स्टोरीज सुनानी है, क्योंकि हर औरत की कहीं ना कोई स्टोरीज है, और उन सब में, हर औरत की स्टोरीज में सिमिलैरिटीज भी बहुत है। वो जो फेस करती है, जो कोई यहाँ की हो चाहे अमेरिका की, बहुत सारी सिमिलैरिटीज है, तो मुझे वो सारी चीज़ें प्रेजेंट करनी है। तो ये मेरा जर्नलिज्म का कभी भी कोई स्ट्रेट पाथ या नहीं रहा, बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं लाइफ में, और वो टर्निंग पॉइंट्स ही आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर लाके खड़े करते हैं। और शायद जो होता है वो मैं कहती हूँ ना कि एंड वी प्लान एंड ही प्लान्स एंड ही इज़ द बेस्ट ऑफ द प्लानर्स। और मैं इतना सभी कभी रिग्रेट नहीं करती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ।
जो हुआ उसने प्लान किया था, और वो उससे बेहतर कुछ आपके लिए बेहतर सोच ही नहीं सकता। So that, but now that we're talking about ecosystem, मैं आप सबसे ये पूछना चाहूँगी कि कितना इम्पोर्टेंट है वो इकोसिस्टम। तो पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल कि हम अपने आप को उस सिस्टम का हिस्सा कैसे बना सकते हैं। तो कोर्ट का एम है तो बहुत कम, बिकॉज ज़िंदगी में हाँ आपको अल्लाह की ज़रूरत होती है, बट अल्लाह भी आपकी ज़िंदगी में ज़रिए बनाते हैं लोगों को, कि कैटलिस्ट, मतलब आप चल लेंगे शायद अकेले भी, ऐसा नहीं है, अल्लाह की सपोर्ट से आप चल लेंगे, बट शायद यहाँ से यहाँ पहुँचने में जितना टाइम आपको लगेगा ना, उससे कोई साथ दे देना कैटलिस्ट, जो मेरी फैमिली ने हमेशा साथ दिया। और इवन मैं यूनिवर्सिटी आ गई, मैंने आपको बताया था जैसे कि मैं मेरे इस इंसिडेंट की 1 साल बाद ही दिल्ली आ गई थी। न्यू लोग, पूरे नए लोग, नई सोसाइटी, एक पूरी कम्युनिटी थी अलग, बट अल्लाह ने मुझे यहाँ पर भी बहुत अच्छे मतलब दोस्त दिए। 2 लोग, मैं ये नहीं कहती कि सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे, ऐसे नहीं, बहुत नेगेटिव चीज़ें भी सुनी है मैंने, बट शायद 1 या 2 लोग ही इनफ होते हैं। एंड आप वो बनिए दूसरों के लिए भी, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्योंकि अगर आपके लिए लोग बने हैं तो आप भी लोगों के लिए बनिए, तो वो भी, क्योंकि हर इंसान किसी ना किसी इशू से जूझ रहा होता है। शायद मेरा बहुत ओपनली लोगों को दिख रहा होता है, बट किसी का नहीं दिख रहा होता है, तो यू शुड टॉक टू पीपल, और वो आप भी जरिया बनिए। अल्लाह ने आपके लिए लोगों को जरिया बनाया, तो सपोर्ट सिस्टम तो बहुत ज़रूरी होता है। एंड इवन मेरे हाथ से जैसे बताया गज़ल आपा ने कि जैसे आपके साथ कुछ हो गया, तो आप उस चीज़ को एग्जाम्पल पोर्ट्रे करके सोसाइटी में कैसे चेंज ला सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एसिड अटैक सर्वाइवर होने के बाद मैं सबसे ज़्यादा मेल जो बच्चे होते हैं ना, उनके साथ बहुत वर्क करती हूँ। मैं एक छोटा सा NGO भी, वो मेरा बहुत पर्सनल है, मैं उसको मैंने स्टार्ट करा है पिछले 1 साल से, और मैं वहाँ पर लड़के जो बच्चे 7 से 11 साल 14 साल तक के होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करती हूँ, और उनका जो पर्सपेक्टिव होता है ना, क्योंकि हमारी वो मूवीज़ देखते हैं, और वहाँ पर क्या हो रहा है, एक लड़की नाच रही है और उसके मतलब बहुत सारी लड़कियाँ डांस कर रही हैं, और एक लड़का, खासकर अक्षय कुमार की मूवीज़ में, आई हेट दोज मूवीज़। और मेरा भाई जब वो बैठ के देख रहा था ना, ही इज़ यंगर देन मी, 10 साल का 12 साल का अभी वो है, और जब वो देख रहा था तो फिर मुझे लगा कि वो क्या सोच रहा होगा कि औरत जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो मैंने उसको समझाया, और मेरे भाई को शायद वो जब मेरे बहुत छोटा था, जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, जब से उसने होश संभाला है, उसको पता है कि उसके अप्पा के साथ क्या हुआ है, और मैं उससे बात करती हूँ कि कभी तुम औरत क्या होती है, उसके हक क्या है, और आपको कैसे रिस्पेक्ट देना है। आप नज़र नीचे करके बात करेंगे आपकी क्लास की लड़की को, आप कैसे रिस्पेक्ट देंगे। तो वो जो सोसाइटी में चेंज लाना है ना, वो यहाँ से लाना है, वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप ये कर सके तो दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल, अगर आप अपनी लाइफ की चीज़ों से सीख करके उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और उससे सोसाइटी में चेंज आ जाए। तो ये एक एनवायरनमेंट, जो हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है, उसमें हम कहीं ना कहीं एनहांस कर सकते हैं, ताकि और लोग जो होंगे वो दूसरों की सपोर्ट बन जाएंगे इस चीज़ से, इस छोटी छोटी चीज़ों को करने से। और इसमें हमें लिमिट नहीं करना चाहिए। लाइक मैं क्या करती हूँ कि अपने घर पे, मेरे घर के पीछे एक स्लम भी है, अपनी बिल्डिंग के भी बच्चे बुला लिए, सबके जो लड़के बच्चे, लड़कियों को भी बुला लेते, छोटे छोटे बच्चों को, और उनके साथ एक सेशन करा, गुड टच बैड टच। तो कम से कम यार ये सारी चीज़ों की नॉलेज तो आई। हमें एज अ चिल्ड्रन मुझे पता भी नहीं था व्हाट इज़ गुड टच, व्हाट इज़ बैड टच। अगर मेरे साथ कुछ हो रहा है, और आज तक दुनिया में कोई औरत नहीं है जिससे मैंने इंटरेक्ट करा हो और उसने बोला मेरे साथ कभी कुछ नहीं हुआ, ऐसी कोई लड़की नहीं है। कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, स्कूल, एनीवेयर, कोई लड़की नहीं इसने मुझसे बोला नहीं रेशम मेरे साथ तो कभी कुछ नहीं हुआ। सब इनके पास अपनी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 स्टोरीज हैं इस चीज़ से रिलेटेड। तो अगर एज अ बच्चा पता ही नहीं होगा तो फिर मैं ये करती हूँ। तो ये छोटी छोटी चीज़ें शायद मेरा बहुत टाइम नहीं लेती। मैंने थर्सडेज को मैंने 1 महीने में 1 सेशन कर लिया ऐसे, बट ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल होती हैं फॉर द सोसाइटी। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी में हमेशा कुछ लोग रखे, मैं नहीं कहूँगी भीड़ रखी, बट 4 से 5 लोग मेरी ज़िंदगी के ऐसे सपोर्ट रहे तो शायद मैं जो हूँ मैं उनकी वजह से हूँ। ये बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट बात है। And thank you, Resham, a fighter, the most courageous out here. इन्होंने फील्ड भी ऐसी चूज करी है, जर्नलिज्म, जिनमें you have to fight it out. And Resham is an alumni as well, so thank you so much for being a part of our community and supporting Ledby. I'm lucky to be a part of Ledby. Thank you. Thank you so much. She has motivated me the most. I'd also like to thank Iram, बहुत शॉर्ट नोटिस पे इन्होंने यहाँ पे अपना
कपड़ों का बुटीक लगाया है. Please support her also and she'll explain a little. I'll just explain about it. Okay, she's my khala basically, and इन्होंने फैशन डिजाइनिंग करी थी लखनऊ से. फिर she got married and kids and all. Then as a housewife she was leading. फिर अभी ये दिल्ली शिफ्ट हुए कुछ टाइम पहले, और उसका रीजन कहीं ना कहीं मैं और मेरी बहन थे यहाँ पर. एंड बचपन से मैंने जितनी डिजाइनर ड्रेसेस पहनी है, हर इंसान पूछता था ये किसने बनाई, ये किसने डिजाइन करी, और मेरी खाला होती थी. तो मैं बोलती थी कि आप अपना ये जो आपका टैलेंट है, व्हाई डोंट यू यूज इट, आपके पास इतना टैलेंट है. तो अभी हमने बस कुछ मंथ्स पहले, 2-4 मंथ्स पहले ये डिसाइड करा, लेट्स डू इट. एंड शी इज अ वुमेन, घर आती है, खाना बनाती है, बुटीक जाती है. बुटीक में सारी चीजें मास्टर जो है उनको डिजाइन करके आती हैं कि आप ऐसे डिजाइन करेंगे, आप ऐसे करेंगे. फिर आती है घर में बच्चों को देखती है, क्योंकि बच्चों के स्कूल के टाइम होता है वापस आने का. एंड शी इज अ वुमेन जो स्टीरियोटाइप ब्रेक कर रही है कि यूजुअली क्या होता है ना कि माँ बाप बेटों के साथ रहते हैं. शी इज द वुमेन जो अपने माँ बाप को सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रही है, अपने पास रख के. एंड वो माँ बाप अपने बच्चों, और मैं और मेरी बहन भी यहीं पर रहते हैं, सब सारी चीजों को शी इज हैंडलिंग इट अलोन. एंड सो प्लीज सपोर्ट हर. Thank you so much, Resham. Explained it very well. सीन्स यो सारे और मेरे हाथ. हाथ भी रख देना चाहिए. हाँ काफ़ी है, मेरा हाथ जल रहा है इस कप से बार बार. हाँ नो मैटर हाउ मच टायर्ड आई एम, मेहंदी ज़रूर लगेगी. मुझे वहाँ पर लेट बाई के इवेंट हमारा ख़त्म हो गया एंड आई एम बैक. आई एम रियली टायर्ड एंड ये मेरे पैर की हालत है, चोट लग गई थी मुझे. खैर वहाँ पर से ये मेहंदी का कोन मिला, तो मैंने सोचा थोड़ी सी मेहंदी तो बेड पे बैठ के लगा ही सकती हूँ, तो मैं मेहंदी लगा रही हूँ. आई लव मेहंदी. सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग एवरीवन. बाय बाय एवरीवन, टेक केयर. और ये लेट बाय का इवेंट था, तो आई ट्राई टू शेयर इट विथ यू पीपल, बट कुछ लोग वहाँ पर पर्दा करते थे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने थोड़े से कुछ शॉर्ट्स नहीं रिकॉर्ड करे. बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन.